Hi everyone, welcome back to the Code Street, and in today's video we will be learning about a problem which we will solve so that it can combine all the three concepts of conditional statement, looping structure and data modifiers as well. So I am Siddhant and let us begin this video on this very note. तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जिसमें ये तीनों कॉन्सेप्ट्स जो हमने प्रीवियस 3 वीडियो में समझी उन तीनों को हम एक तरह से इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्लीमेंट देम इन द रियल कोडिंग एनवायरनमेंट. But before we can discuss this problem, let us first try to understand a bit about Newton School as well. So Newton School is actually an edtech platform which guarantees you 100% placement, and they are doing it by charging you 0 rupees up until you get placed. यानी आपको 0 rupees देने पड़ेंगे जब तक आपकी placement यहाँ पूरी नहीं हो जाती. And they are doing it in tie-up with a lot of really great companies. So these companies are some of the great companies like Xiaomi, Lenskart, ThoughtWorks, 7-Eleven, Myers, Motorola, Meesho, Deloitte, and these can be really found out on their website as well. They are giving away courses which are for different target audience like Newton School for Women, Full Stack Development, course for experienced professionals. Like it can be taken up by anyone who wants to learn programming or any particular tech stack in general as well. Newton School has also launched the Launchpad module in under which they are giving away courses for free, whether it is your inquisitiveness to learn a new programming language or a new complete tech stack like React.js, Node.js, or to learn backend database management and SQL. All those things are now available for free, which are taught by top educators, and you can access them, get the certificate of completion after completion of each of the courses. And the only limitation that you will face is your field of interest and your level of inquisitiveness. You have to go to their platform और आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा आपकी मनपसंद कोर्स कौन है. Just enroll and just start doing it. All you have to do is just that. So now let us begin with today's question and today's problem. तो आज की हमारी जो प्रॉब्लम है वो है कि in a range of numbers, like there is a particular set of numbers जिनकी range है, I have to find out a maximum and a minimum number between them, है ना. तो अगर हमारे पास कोई रेंज है, now you will be telling me like भैया अगर हमारे पास रेंज हुई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 like this, ठीक है. So it will be really very easy to find out because we know that this is a sorted order 0 till 10, and of course the last अगर increasing ascending order में sorted है, it means that the last number will be the maximum number and the first number will be the minimum number. Pretty simple. But what if the range is not sorted, like I have mentioned below? 0 9 5 7 3 6 1 2 10 8. This is not a sorted list, but however we have to still find out whether 0 is the minimum number and 10 is the maximum number, right? So this can also be done, but how are we supposed to do it? We can do it by integrating the three concepts of conditional statement, looping structure and data modifiers. ठीक है. Now इसको हम समझते हैं and then we will code it out. So let us try to first understand how are we supposed to do it. Okay, so let me take this list of numbers 0 9 5 7, what was the list? 3 6 1 2 10 8. 3 6 1 2 10 8. Okay, so this is the list now. तो अब मैं इसमें कैसे encounter करूँगा? Now I know that this is the range and now I have to find out the maximum and minimum numbers, right? So let me assume that maximum is initialized to some value like minus infinity and minimum is initialized to plus infinity. Okay, now what we have to do is, अब हम अगर चेक करते चले each time, है ना, each time I'm taking a number like 0 को मैंने चेक किया, 0 कंपेयर कर रहा हूँ मैं मैक्सिमम से,
तो ज़ीरो मैक्सिमम में आ गया, ये माइनस इन्फिनिटी मैक्सिमम है क्योंकि ज़ीरो पे, तो मैक्सिमम में माइनस इन्फिनिटी है। तो क्या ये मैक्सिमम से छोटा है कि बड़ा है? ज़ीरो। अगर इसमें अगर हम देखें तो इसमें असाइन कर देते हैं, चलो ज़ीरो। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मल्टीपल इफ हम लगा रहे हैं, वी वोंट बी यूजिंग इफ एल्स और इफ एल्स इफ, वैसे नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, वी विल बी डूइंग मल्टीपल स्टेटमेंट्स। तो दिस मैक्स में भी ज़ीरो चल गया और यहाँ पे मिन में भी ज़ीरो चला गया फर्स्ट केस में, बिकॉज इट इज़ बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट वी एनकाउंटर 9. Now we will check if it is greater than max and if it is less than min. तो max में अगर ज़ीरो है और min में भी ज़ीरो है तो 9 if it is greater than max तब इसमें स्टोर हो जाएगा ये नया नंबर। तो is 9 greater than 0? Yes it is. तो now 9 will be stored. Now is 9 less than 0? No it is not. So it still remains 0. Next we encounter 5. Is 5 is 5 greater than 9? No, so it will still remain 9. Is 5 less than 0? No, it will still remain 0. So far I have encountered 3 numbers, and in these 3 numbers I have found out that my minimum is 0, maximum is 9. ठीक है? Then I go to 7, still no change, it is still remaining 9, it is still remaining 0. Then I go to 3, it is still remaining 9, it is still remaining 0. 6 में भी कोई चेंज नहीं आएगी, 6 में भी कोई चेंज नहीं आएगी। ऐसे सब कुछ सेम चलता रहेगा अप अंटिल वी कम टू 10 वेयर आई विल कंपेयर दैट 10 इज ग्रेटर देन 9. यस, आई एम पुटिंग अ डॉट डॉट, यस, एंड यहाँ आ जाएगी 10. But of course 10 is again not less than 0, so it will still remain 0. And by the end of it, when we reach 8, we will still get that maximum is 10 and minimum is 0. So this is how we are supposed to. अब इसको हम implement कैसे करेंगे वो देखते हैं। लॉजिक तुम समझ गए, लॉजिक हमने दिमाग में बना ली. दिस इज समथिंग विच विल गो ऑन इन योर हेड. ठीक है, while coding out a problem, this is something which goes on inside your head. The idea is now generated inside my head. Now I need to code it out. अब कोडिंग के वक्त अपन को क्या करना है, we have to do it one by one. इंटीग्रेटिंग 3 कॉन्सेप्ट्स. चलो इसको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं. ठीक है, देखो धीरे धीरे समझ के करेंगे, सब हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम. ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस. What just happened? हाँ, मेन में हम घुस गए. ठीक है, सबसे पहले तो रेंज को हमें इनपुट लेना पड़ेगा, है ना. रेंज पे काम कर रहे हैं तो रेंज को पहले इनपुट लेना पड़ेगा. फिर हम दो मिन और मैक्स ले रहे थे, तो int min इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, int max. This was supposed to be my plus infinity, as I told you in the data modifiers lecture video. If you don't remember it, please do rewatch it. And int max equals to int min, right? And फिर हम जो नंबर इनकाउंटर करेंगे वो इनपुट ले लेंगे. ठीक है, समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? रेंज है, n यहाँ पे क्या है, n इज द लास्ट ऑफ दैट रेंज. उस रेंज की जो लास्ट होती है ना डिजिट, वो है n यहाँ पे. ठीक है, मिन यहाँ पे क्या है, मिन है यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी असाइन कर रहे हैं. मैक्स क्या है, वो मेरे को मैक्सिमम नंबर स्टोर करेगी, तो उसमें माइनस इन्फिनिटी असाइन कर रहे हैं. अब आप बोलोगे भैया आप मिन में मैक्सिमम, मिन में प्लस इन्फिनिटी क्यों असाइन कर रहे हो, मिन तो मिनिमम नंबर स्टोर करेगी, आप उसमें माइनस इन्फिनिटी असाइन करना चाहोगे ना. बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो. ईच टाइम अ नंबर इज गेटिंग स्टोर्ड इनसाइड मिन, व्हाट इज हैपनिंग. पहली बारी हम एक नंबर को, अगर हम बहुत ध्यान से सुनो, हम उस नंबर में 0 स्टोर कर रहे हैं, राइट. देखो इनिशियल स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों मैक्स और मिन में इनिशियली 0 0 स्टोर हो रहा है. ठीक है,
नाउ फॉर मी टू एसेंशियली, या फिर मैं कह सकता हूँ फॉर मी टू efficiently store 0 inside min and max, I will have to compare it against a value, right? Now if I compare it with int min, देखो अगर मैं min में int min डाल दूँ, यानी min में माइनस इन्फिनिटी डाल दूँ, तो is zero लेस देन माइनस इन्फिनिटी? नेवर। तो जीरो कभी min में आएगा ही नहीं। सिमिलरली इज जीरो ग्रेटर देन प्लस इन्फिनिटी? कभी नहीं हो सकता। सो कभी जीरो मिन और मैक्स में स्टोर ही नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो इसीलिए मिन में प्लस इन्फिनिटी स्टोर करो, सो दैट इफ आई कंपेयर अ वैल्यू अगेंस्ट इट, इट कैन एफिशिएंटली गेट स्टोर्ड इनसाइड इट। समझ में आई बात? एंड वाइस वर्सा मैक्स में int min स्टोर करो। नेक्स्ट इज आई विल हैव टू चूज दैट पर्टिकुलर नंबर, तो उसके लिए मैंने no बोल के एक वेरिएबल ले ली। नेक्स्ट आई विल हैव टू डू इज आई विल हैव टू सिलेक्ट दी रेंज, तो उसके लिए int i इक्वल 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। नाउ ईच टाइम आई विल बी सिलेक्टिंग अ न्यू नंबर, तो c इन नंबर उसके लिए। नाउ बिगिंस दी कंडीशनल पार्ट। तो अभी हमने यहाँ पे किया डेटा मॉडिफायर्स पार्ट। ये डेटा मॉडिफायर्स पार्ट आप यहाँ पे भी टाइप कर दो। यहाँ किया हमने लूपिंग पार्ट, एंड अब हम करने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग पार्ट। तो डिसीजन मेकिंग में क्या करेंगे अपन? डिसीजन मेकिंग में अपन हम देखने वाले हैं कि इफ दिस नंबर, ये जो नंबर है हमारी, इफ इट इज लेसर देन min, ये नंबर जो हमने चूज की यदि ये min से लेस है, तब हम min में डाल देंगे इस नंबर को। या फिर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, बिकॉज वी आर एग्जीक्यूटिंग नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव चेकिंग कंडीशंस, दोनों कंसेक्यूटिवली हमें वो करना है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ तो ये, या फिर वो नहीं हुआ तो वो नहीं करना है। हमें वो चेक ही नहीं करना है, हमें करना है दोनों को चेक करना है साथ साथ। तो इफ नंबर इज ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स इक्वल्स टू, सिंपल सी बात है। उसके बाद अपन दो ठो ब्रैकेट क्लोज किए, बिकॉज हमारा लूप के अंदर जो काम था वो हो चुका है। अब हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट हम लूप के अंदर नहीं, लूप के बाहर करेंगे, वरना लूप के अंदर अगर हम प्रिंट करें तो लूप अगर 10 बार चलेगा ना, तो ये प्रिंट भी 10 बार हो जाएगा। लाइक 10 बार मैक्सिमम नंबर इज दिस, मैक्सिमम नंबर इज दिस, मैक्सिमम नंबर इज दिस, मैक्सिमम नंबर इज दिस। वी डोंट वांट दिस, वी डोंट वांट इट। ऑल वी वांट अ सिंगल आउटपुट। लाइक मैक्सिमम नंबर ये है, मिनिमम नंबर ये है, एक सिंगल आउटपुट हमको चाहिए। वी डोंट वांट ऑल दिस कि इतनी बार हमें आउटपुट चाहिए। ऑल वी वांट टू गो ऑन रिपीटेटिवली चेकिंग। तो इसीलिए जो रिपीटेटिव चेकिंग वाली चीज़ें हैं ना, और ये रिपीटेटिव नंबर इंक्लूजन वाली चीज़ है ना, उसको हम लूप के अंदर लिखेंगे। और जो हमें सिंगल बार एक आउटपुट चाहिए, फाइनल आउटपुट, वो हम लूप के बाहर लिखेंगे। तो अब हम लूप के बाहर लिखते हैं सी आउट मैक्स नंबर इज and then print max, or rather I will print endl. And similarly we can copy this again, copy it out, print कर दिया min number is and min। चलो हो गई हमारी प्रिंट, ठीक है। तो लेट अस नाउ ट्राई टू रन दिस फर्स्ट, बट उसके पहले हमें देखना होगा हमारा रेंज 10 है, एंड हमारी नंबर 10 है। यस सी वी विल नॉट गेट एनी आउटपुट, बिकॉज उसमें कुछ एरर भी हुई है। मुझे पता है वो एरर क्या है। हमने रेंज की जो इनपुट ले ली थी वो तो हमने ले ली, लेकिन एक एनओ भी तो लेना पड़ेगा ना इनपुट हमें, एनओ। तो एनओ भी जो इनपुट है वो हमें लेना पड़ेगा। तो लेट अस सी कि जो एनओ इनपुट है हमारी, हम क्या ले सकते हैं। मैसेज पहले क्या है वो देखते हैं।
देखो सी इन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, ओह आई हैव मेड अ मिस्टेक, शिट। हाँ, तो नो मैच फॉर ऑपरेटर, ऑपरेंट टाइप्स stdio स्ट्रीम। हमने एक चीज़ नहीं किया है, hash include c limits which must be used every time anti-min and anti-max are used. Now if you try to run and whatever else is there, so operator is like this is a very silly error. तो अब हमें देखना चाहिए आउटपुट क्या आ रहा है. Maximum number is 5 and the minimum number is also 5. So the main error that we are getting is that कि यहाँ पे maximum number भी same दिखा रहा है और minimum number भी same दिखा रहा है. Now what we will do is we will try to see कि हमारी error कहाँ हो रही है. Debugging is also very essential part of code. तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एरर कहाँ हो रहा है. तो एरर में अगर हम देखें तो हमने आईओ स्ट्रीम लिया, सी लिमिट्स लिया, सब कुछ लिया, INT-n लिया, हमने नंबर एक्सेप्ट किया यूजर से विच इज मार्किंग द रेंज ऑफ नंबर्स. ठीक है, INT-min लिया, INT-max लिया, INT-number लिया हमने, फिर INT-number इज सी इन नंबर, वी एक्सेप्टेड द नंबर फ्रॉम द यूजर. कूल, फेयर इनफ. फिर हमने नंबर एक्सेप्ट कर ली यूजर से. नंबर एक्सेप्ट करने के बाद what we are doing here is that we are using these numbers. For example, if we dry run this, if we take this number 5 as input from the user and we compare it each time, तो एक ही बार होगा, but next time what is happening is we have to take another number as input, right? So actually why should we take a number? हमें ये थोड़ी ना चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर नंबर हुआ है कि नहीं. We have to check each number each time, right? है ना. तो what if I do this, that we actually don't need this. If जो मैं आई हर बार वो कर रहा हूँ आई, उसको मैं अगर चेक करूँ और मैं आई को ही इसमें स्टोर कर दूँ, then what will I get? I don't actually need that, isn't it? Yeah, that is it. हो गई हमारी प्रॉब्लम, हो गई. So see, it is really very simple how it can be done. बहुत ही सिंपल है ना. देखो ध्यान से समझना हमने कैसे किया इस प्रॉब्लम को. So why do I always say that debugging is also an essential part of coding, right? देखो इसमें क्या हुआ, हम एक बहुत छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे कि we actually had what we did was we took no बोल के हो रही थी ना, एक इनपुट ले रहे थे हम वेरिएबल को, उसको हम इनपुट ले रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था कि हम हर बार एक वेरिएबल को ऐसे इनपुट ले रहे थे उसके अंदर लूप के अंदर that it had to check for that particular number as well. तो जब हम no को इनपुट लिए, हमने 5 डाला, उसने 5 को कंपेयर किया min से and it stored 5 inside min. Again it also compared it against max and stored it inside max. बस उसका काम खत्म. उसके बाद उसमें कोई इनपुट ही नहीं जा रही है. समझ में आई बात? उसके बाद उसमें कोई इनपुट ही नहीं जा रही थी, तो इसीलिए फिर वो उसके बाद टर्मिनेट हो जा रहा था और वो बार बार फिर कह रहा था कि हमें वो करना है, मैक्स नंबर भी 5 है, मिन नंबर भी 5 है. उस प्रोग्राम में अगर हम क्या करते कि अगर हम उस एक बार 5 की जगह ऐसे कर देते ना कि 10, उसके बाद हम नंबर इनपुट ही देते जाते उतने नंबर ऑफ टाइम्स, 5 6 7 8 9 3 2 1 5 4 3 2 9 10 नंबर ऑफ टाइम्स एक आर्बिट्ररी हम इनपुट दे जाते, तो हमें पता चल जाता हमारा मैक्स और मिन नंबर क्या है. समझ में आई बात? वरना अगर सिंपल अगर हमको रखना है, फॉर एग्जाम्पल
ये जो हमारी सॉरी ये जो हमारी रेंज है 0 से लेके 10 तक, तो 0 से लेके 10 तक में मिनिमम और मैक्स नंबर हमें क्या पता चलेगी? उसके लिए देखो हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोग्राम को, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आई 0 है, आई हर बारी प्लस हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से समझना है इसमें। फॉर आई में घुसा, अंदर गया, अंदर जाके आई एम चेकिंग इफ आई इज लेस देन min or not, it gets stored inside min. If it is greater than max or not, it gets stored inside max. Then again it goes back to the loop. Now I is 1. Again it is entering inside. It is getting checked and so on and so forth. समझ में आ रही है बात? तो ऐसे चल रहा है अपन का केस कि ईच टाइम एक नंबर है जो इंक्रीमेंट हो रहा है और वो चेक हो जा रहा है एंड अकॉर्डिंगली इट इज गेटिंग स्टोर्ड इनसाइड मिन एंड मैक्स। तो उसके अकॉर्डिंग देखो लास्ट में मुझे आंसर भी मिल गया कि मैक्स नंबर इज 10, मिन नंबर इज 0। नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इन द प्रीवियस केस एंड व्हाट वी डिड नॉट डू इन दैट। देखो अगर मैं चाहूँ तो इसको सेम ही रख दूँ और मैं यहाँ पे सेम काम कर दूँ, दैट इज इफ आई डू ctrl zz आई गेस सब कुछ प्रीवियस जैसे था वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, आ गया। चलो अब हमें क्या करना हो रहा है, यहाँ पे देखो 10 है हमारी इनपुट, दैट इज वी हैव टू टेक 10 नंबर्स एज इनपुट। इसके बाद हमें 10 इनपुट्स भी तो लेने होंगे, दैट इज 0957361210 8 कहाँ गया, चलो 0957321 यही थी ना रेंज, 0957361210 8 361210 8। अब देखते हैं क्या होती है आउटपुट। आई विल गेट स्टिल द सेम आउटपुट। तो प्रोग्राम में कोई गलती नहीं थी। यहाँ क्या हो रहा है कि हम ये नंबर इनपुट ले रहे हैं ना, तो अब क्या हो रहा है, फॉर के अंदर हम आई को एज अ नंबर नहीं मान रहे हैं, अब हम नंबर को एज अ नंबर मान रहे हैं। नंबर जो एनओ बोल के जो वेरिएबल है वो नंबर हम इनपुट मांग रहे हैं। तो ईच टाइम आई एंटर द लूप, I take a number as input, I check it across this min and max, store it inside min and max, then move on ahead. Again I enter the loop, again I take a new number this time, and then so on and so forth. Why am I doing so? This is because now my range is not sorted. It is not 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now it is arbitrary. Arbitrary मतलब क्या कि 9 फिर like it is increasing then decreasing then again increasing then decreasing and so on and so forth. तो इसके लिए मुझे एक थर्ड वेरिएबल को लेना ही पड़ेगा एंड दिस इज हाउ इट गेट्स एक्सिक्यूटेड एज वेल। देखो आई एम स्टिल गेटिंग द राइट आउटपुट, दैट इज मैक्सिमम नंबर इज 10 एंड मिनिमम नंबर इज 0 विच इज ट्रू फॉर दिस केस। आ रही है बात समझ में, है ना? तो ये तो फंडा है इसका। सो दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी डन। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस इज concept of break and continue. It is a very short concept and I think that it is very important to include it as well in the video. तो break and continue की concept में आते हैं अपन। Concept of, let me change the color of the pen so that it gets highlighted as an entirely new concept. Just a second. Yeah. So concept of break and switch. तो ब्रेक और स्विच की कॉन्सेप्ट क्या होती है ये हमको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखो अभी क्या हो रहा है कि अगर मैंने मान लो कोई इनपुट लिया, ठीक है, एंड ब्रेक और सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू आई वुड से, नॉट स्विच, कंटिन्यू। I wrote it down in my to-do list, like how to explain it, like what are the topics that I should be covering in break and switch and continue. Okay, so what I was thinking is, for example, yes, फॉर एग्जाम्पल तो ब्रेक और कंटिन्यू की क्या होती है, एक बहुत छोटे से नॉमिनल से एग्जाम्पल से वी कैन अंडरस्टैंड दैट इफ int नंबर बोल के हमारे पास एक वेरिएबल है,
ठीक है. Now up until this condition is true. अब आप मुझसे पूछोगे भैया while true क्या होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं while one. भैया while true क्या होता है, while one क्या होता है? While one or while true means that up until the control encounters a break statement, it will not exit the loop. ठीक है, तो while true हो रहा है जब तक we will be checking a case. Suppose a particular case हम चेक कर रहे हैं. यहाँ पे अगर n है तो मान लो n मॉड्यूलर 2 equals 0. Then we print divisible. Okay, वरना we print break. यहाँ पे हम break print कर देते हैं, वरना एक काम कर सकते हैं, we print come out of the loop. come out. चलो ये भी सही है. And what happens is ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ना, ये ब्रेक स्टेटमेंट के आसपास ही वी कैन राइट अप आवर कंटिन्यूस स्टेटमेंट एज वेल. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, इसको समझने की अच्छे से कोशिश करो. एंड वी विल आल्सो मेक टू नोट्स एज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली हियर एंड हियर. तो एक नंबर है हमारे पास n. सपोज वी हैव दिस नंबर n और हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया. चलो I accept is here, I accept it here as n. चलो. Now, up until this condition is true, that is, I am entering an infinite loop. Infinite loop के अंदर अब क्या हो रहा है? I am checking that if n is divisible by 2 or not. If it is, then I will print divisible and I will break. Now, अगर मैंने break statement वहाँ पे use कर दिया, तो break statement means that the control will exit from that. Like it will print cout divisible. ठीक है, मैंने एक नंबर इनपुट ली 8. 8 इज डिविजिबल बाय 2. यस, आई विल प्रिंट डिविजिबल. ब्रेक स्टेटमेंट है, आई विल एग्जिट एंड आई विल कम आउटसाइड. डन, हो गया मेरा काम. बट इफ आई हैव रिटन इट कंटिन्यू स्टेटमेंट, 8 हमने लिखा, 8 इज डन, डिविजिबल, सी आउट डिविजिबल किया, कंटिन्यू स्टेटमेंट. कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, इट विल नॉट एग्जीक्यूट द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड इट विल अगेन गो बैक टू द व्हाइल ट्रू स्टेटमेंट. समझ में आई बात? कंटिन्यू वापस से चला जाएगा व्हाइल ट्रू पे एंड इट विल अगेन चेक इफ इट इज डन और नॉट, डिविजिबल और नॉट. अगेन इट विल प्रिंट डिविजिबल, अगेन इट विल गो बैक एंड चेक एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. ऐसे चलती रहती है क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट है वहाँ पे. ब्रेक इज बस एक बार डिविजिबल हो गया, खत्म काम, ब्रेक, कम आउट ऑफ द लूप, और ये वापस लूप में चला जाता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड नथिंग एल्स. तो ब्रेक स्टेटमेंट terminates a condition come out of loop after its execution. इसमें क्या होएगा, इसमें होएगा स्टे, कंटिन्यू की बात कर रहा हूँ, within the looping hierarchy, stay within the loop structure, and what happens is it does not terminate the condition, that is it again goes to the while and it again is execute the set of statements. So does not terminate loop structure. चलो, तो ये भी हमारी हो गई. And with this I think that we have come to today's session and our concept of break and continue statement is also clear, and we have also discussed the problem as well and the efficient way of handling both the cases, if it is a sorted list and if it is an unsorted list. I hope that today's session was clear, and in the next session what we will try to understand is we will get to learn more about operators and a switch case structure. Operators और switch case structures पे अपन काम करेंगे, and we will
ऑल्सो लर्न अ वेरी गुड लूपिंग प्रॉब्लम. देखते हैं लूपिंग प्रॉब्लम अगर हम शुरू करते हैं तो ब्रीफ से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक प्रॉब्लम से, एंड देन वी विल स्लोली प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एडवांस्ड वंस. एंड दैट इज़ इट. तो सबसे पहले अपन का काम होगा ऑपरेटर्स करेंगे. वी विल बी डूइंग ऑपरेटर्स, पूरी ऑपरेटर एनालॉजी समझेंगे, स्विच के स्टेटमेंट समझनी है, फिर लूपिंग के प्रॉब्लम्स करने हैं, नंबर के प्रॉब्लम्स करने हैं. These four are our basic targets, and the fifth target is functions. We are all set to go for data structures. 5 targets. So let us write it down in the section here. हमें क्या करना है अभी operators we will be doing, and switch case, pattern problems, number problems, function. Okay, so these are the 5 tasks that we have to do, and uske baad we will be all set for data structures and algorithms, and I can't wait to start it because we have some really phenomenal problems in them. तो तब तक के लिए goodbye, and don't stop learning, and always keep discovering, and don't stop coding as well, and do visit Newton School platform to learn some amazing stuff for free. Goodbye.